So in the previous class, we were discussing the concept, and that concept was based on the maximum and minimum value of the expression a sin x plus b cos x. Right? Today is the final class based on the trigonometric ratios and identities. So a sin x plus b cos x, what is the range of that function? Maximum and minimum value, as well as you can say range of that function. X की values के corresponding what is the value of f of x, है ना? Let's say that is f x. तो यहाँ पर x can take all real values, sin x is there, cos x is there. So a sin x plus b cos x, range of that function is clearly minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, and we have discussed as well as derived this result. ये result derive किया था हमने, minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square is the range of that function a sin x plus b cos x. अगर मैं आपसे कहता हूं कि if I to find out 4 cos theta plus 11 sin theta minus 2 and range of that expression, क्या कहेंगे आप? 4 cos theta plus 11 sin theta minus 2, and if you have to find out the range of that function, तो as far as आपने observe किया 4 cos theta plus 11 sin theta angle is same there. So 4 cos theta plus 11 sin theta, that range is from minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square. That is clearly 4 square plus 11 square, that is minus of root over 4 square plus 11 square, and which is coming as what? 121 plus 16. 121 plus 16 is 137. So it is minus of root over 137 to root over 137 is the range of the expression 4 cos theta plus 11 sin theta. But in the question minus 2 is also there. So ठीक है, if minus 2 is also there, minus 2, subtracting minus 2 everywhere कर सकते हैं. So that range of that expression 4 cos theta plus 11 sin theta minus 2 is nothing but minus of root 137 minus 2 to root over 137 minus 2 close brackets. That's the range, right? बट ये मैंने आपको समझाया था कि these two angles must be same. ऐसा नहीं होना चाहिए here theta is there, इधर 3 theta is there. In that case we cannot apply this approach. दोनों एंगल सेम होंगे तभी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना? If it is 5 cos 2 theta minus 12 sin 2 theta plus 10, and if I ask you the range of that expression, so आपने ऑब्जर्व किया ओके दैट एंगल इज 2 theta, here it is again 2 theta. Yes, we can apply the rule, same concept. 5 cos 2 theta minus 12 sin 2 theta that range is minus of root over 5 square plus 12 square to root over 5 square to 12 square. 144 plus 25 169, 169 square root is minus 13 हो जाएगा, तो it is minus 13 to plus 13, and ये तो रेंज आ गई आपकी for this expression. Plus 10 is also there. Adding 10 everywhere
It will become minus 13 plus 10, minus 3 to 23. That's how we are going to find out the range. But these are the simple questions. अब कुछ आगे की बात करते हैं. Now the question is, you have to find out the value of 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 5. You have to find out the value of this function. So 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 5. Directly we cannot apply the rule because angles are different here. Here the angle is theta. Here the angle is theta plus pi by 3. So both the angles are different. A cos theta plus b sin theta, in that case we can say that range of that function is from minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, or root over a square plus b square is the maximum value and minus of root over a square plus b square is the minimum value. But here angles are different. So fine, let's say it is equals to y 5 cos theta. First of all cos a plus b आपने अप्लाई किया, cos a cos b minus sin a sin b. cos a cos b minus sin a sin b plus 5 is there, जैसा था वैसा है, ठीक है. Sin 60 degree cos 60 degree, we have kept the values there. 5 cos theta plus cos 60 degree 1 by 2 3 by 2 cos theta minus of sin 60, that sin 60 is nothing but root 3 by 2 3 root 3 by 2 sin theta plus 5, right. अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज कर लेंगे. 5 cos theta plus 3 by 2 cos theta, so it will become 5 plus 3 by 2, that is 13 by 2 cos theta minus of 3 root 3 by 2 sin theta plus 5, right. So it is 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta. अब जरा भी इस एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व करें. Now you can definitely think about a cos theta minus b sin theta. अभी ठीक है ये, this angle is theta, this angle is also theta, and we can definitely say 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta minus of root over a square plus b square to root over क्या वैल्यू आ रही, जरा चेक करिए. 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta. When you take the LCM, it is coming as, जब सॉल्व करते हैं 169 by 4 plus 27 by 4, so 196 by 4 49, in square root of that is 7, it is minus 7. So minus 7 to 7, but we'll have to take care that 5 is also there. So 5 is there, so adding plus 5 everywhere in the inequality, right. So it is becoming डायरेक्ट लिख दें 13 by 2 cos theta. चलिए 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta plus 5, 7 plus 5 12, and minus 7 plus 5 minus 2. That's the result. So minus 2 to 12 is the final result. 12 is the maximum value and minus 2 is the least value. Now the question is, you have to find out the value of the expression 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6 plus 11. So again, if you observe here,
If you observe the angles here, the angle is theta and theta minus pi by 6. Again take that expression equals to y. So both the angles are not same. First we'll have to solve the expression. पहले solve करना होगा. It is 3 cos theta plus 5 times sin of a minus b. फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर. sin a cos b minus cos a sin b plus 11. ठीक. It is 3 cos theta plus cos pi by 6 cos 30 degree, which is root 3 by 2. Sin pi by 6, which is 1 by 2, 5 by 2 cos theta plus 11, right? So y is equals to, arrange किया terms को, 3 cos theta minus 5 by 2 cos theta. तो 3 minus 5 by 2 LCM लेने पर 3, 6 minus 5, 1 by 2 cos theta plus 5 root 3 by 2 sin theta. So 1 by 2 cos theta plus 5 root 3 by 2 sin theta plus 11, right? And now we can definitely think about this expression that both the angles are coming same here, theta and theta. A cos theta plus b sin theta, यहाँ पर हम जरूर बात कर सकते हैं, right? So 1 by 2 cos theta plus 5 root 3 by 2 cos sin theta if I take the range of that expression, हाँ जी, अच्छा चेक कर लेते हैं. 3 cos theta plus 5 sin theta into cos pi by 6 cos 30 degree, that's okay, and sin 30 degree 1 by 2, that's fine. ठीक है. Taken the LCM there, 3 cos theta minus 5 by 2 cos theta, that will become 1 by 2 cos theta, 5 root 3 by 2 sin theta plus 11. So 1 by 2 cos theta plus 5 root 3 by 2 sin theta. So what is the value there? वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ पे 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76 बाय 4 19 रूट 19. Minus of root 19 to plus root 19, and then finally plus 11 is also there. So plus 11 is also there, so adding plus 11 everywhere. So that y is coming from minus root 19 plus 11 to root 19 plus 11. That's the range. The maximum value of that expression is root 19 plus 11 and minimum value of that expression is minus root 19 plus 11. I am taking some of the questions from the question paper. Which of the following is correct? 14th question is there. Sin 1 degree is greater than sin 1. Sin 1 degree, अलग अलग ऑप्शंस हैं. Less than sin 1. Sin 1 degree is equals to sin 1, and sin 1 degree is equals to pi by 180 sin 1. सोचे जरा क्या होगा यहाँ पर. पहली बात तो सेम है क्या? 1 डिग्री और 1
क्या समझते हो आप इसमें? क्या है? नहीं नहीं, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ABCD तो मैंने दे रख दिया हुआ है, सेम है। इट इज नॉट सेम। तो एक बात आती है 1 डिग्री और 1, क्या डिफरेंस समझते हो आप इसमें? हाँ, ये जो 1 डिग्री है ये तो डिग्री, लेकिन ये 1 क्या है? दैट इज क्लियरली फॉर रेडियन। ये साइन 1 लिखा है तो दैट 1 इज फॉर रेडियन, ये रेडियन के लिए। हाँ, C लिखा नहीं भी लिखा है तो भी बिल्कुल तय बात है कि वो रेडियन ही समझा जाएगा उसे, है ना, वो रेडियन ही समझा जाएगा उसे, है ना। अब साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज, यस इट इज क्लियरली रेडियन। तो 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज? 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, राइट। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं लगेगी आपको। साइन एक्स का कर्व, यस यू आर अवेयर ऑफ द कर्व ऑफ साइन एक्स वेरी वेल। ठीक, 57 डिग्री है ना, कर्व इज इंक्रीजिंग, 0 से 90 में कर्व इंक्रीजिंग है। दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री तो यहीं कहीं होगा, दिस इज 1 डिग्री समवेयर। और 57 डिग्री, क्या लगता है आपको? ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा ना। क्लियरली 57 डिग्री पर जो साइन थीटा की वैल्यू आने वाली है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। आर यू गेटिंग दिस? बड़ी आसानी से बात बनती है कि जो साइन 1 डिग्री है, दैट साइन 1 डिग्री इज क्लियरली लेस देन साइन 1। बोले सर 1 लिखा नहीं रेडियन में, अंडरस्टूड है कि ये रेडियन के टर्म्स में बात की जा रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 57 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 57 डिग्री इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, है ना। अगर मान लीजिए कॉस के टर्म्स में होता, सुनिएगा इस बात को, अगर ये कॉस के टर्म्स में होता, तो कॉस के टर्म्स में होता तो कॉस का जो कर्व है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारे कर्व स्केचिंग वगैरह समझाया है, 0 π/2, यहां कहीं 1 डिग्री है ना, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रहा हूं कहीं ना कहीं, और यहां कहीं 57 डिग्री। तो एक सीधी सी बात है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो cos 1 डिग्री जो होगा वो cos 57 डिग्री से ज्यादा होगा। तो उस केस में हम जरूर लिख सकते हैं कि जो cos 1 डिग्री है इज क्लियरली ग्रेटर देन cos 1। वन मोर डायरेक्ट क्वेश्चन वाज देयर जो आपने पूछा है, जैसे sin 200 डिग्री प्लस cos 200 डिग्री, और इसकी वैल्यू ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 0 और पॉजिटिव। दीज आर द 4 ऑप्शंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 0 और पॉजिटिव। तो बहुत सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। ये जब 200 डिग्री आप लिख रहे हो, दैट 200 डिग्री इज देयर क्लियरली इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इफ इट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, और ऑल इट इज नेगेटिव। कुछ भी नहीं करना आपको। 200 डिग्री एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, sin theta cos theta both are negative, summation is also negative. Now the question is, if sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 equals to 3, then value of cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3। छोटा सा सवाल, डायरेक्ट बात की जा सकती है। sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is 3. You are very much aware of the range of sin theta. Range of sin theta is nothing but -1 to 1. 1 is the maximum value, -1 is the least value. थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 equals to 3. It is possible only when, it is possible only when all three are taking their maximum value, 1, 1 and 1. ये तीनों का समेशन जो है वो 3 तभी होगा जबकि तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 1, 1, 1, ठीक है ना। लेकिन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? हाँ, अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे ये जो हो जाएगा sin 91, sin 91, 91। और उस केस में इट इज cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3। इफ इट इज टेकिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, sin थीटा का कर्व देखो आप, जिस जगह मैक्सिमम वैल्यू लेगा cos थीटा विल बिकम 0 देयर। sin थीटा का कर्व अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जिन पॉइंट्स के ऊपर, जिन
एंगल्स के ऊपर साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखे लेने वाला है 1, उन पॉइंट्स के ऊपर उन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा की वैल्यूज चेक करिएगा, दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम वैल्यू, सॉरी नॉट मिनिमम वैल्यू, 0, बिकॉज मिनिमम तो उसकी भी कॉस की -1 हो सकती है। 0 0 एंड 0, समेशन इज नथिंग बट 0। ठीक है ना। तो एक छोटा सा सवाल, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इफ cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 2 is 3 plus cos theta 3 is equals to 3, then sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3, इसकी वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, साइन की वैल्यू थी ना, ये सेम क्वेश्चन था, अलग ही था ना, ओके, अदरवाइज सेम क्वेश्चन हो गया, ओके। तो cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 is coming as 3। कब कब बन रहा है वैसे, बाय द वे cos थीटा 1 कब बनेगा, ओनली 0 डिग्री, कर्व आपके सामने यार, और बताओ, cos थीटा का कर्व आपके सामने, जस्ट ऑब्जर्व और मुझे बताओ कि कब कब बन रहा है। n पाई मत बोलिए, क्योंकि n पाई में n की वैल्यू 1 होगी तो cos पाई तो -1 होता। 0 डिग्री पे बन रहा है, फिर 2 पाई पे बन रहा है, फिर 4 पाई पे बन रहा है, 6 पाई पे बन रहा है, ठीक है ना। सो और इन सारे वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब के ऊपर cos थीटा 1 बनने वाला है। अरे वैसे भी इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई ना, तो cos 0 1 हो रहा है तो 2 पाई ऐड करते जाओ, ठीक है ना। सो और उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग sin थीटा क्या होगा, तो sin थीटा इज बिकमिंग 0 और थीटा इक्वल्स टू n पाई, तो यस इट विल बी 0 + 0 + 0 which would be 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट द पॉइंट इज कि डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम उलझ गए, वो गड़बड़ हो जाएगी, हम कैलकुलेट करने लग गए कि sin a + sin b फॉर्मूला लगाया और ऐसा वैसा, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात की जा सकती है उस केस में। नाउ द क्वेश्चन इज, if 1 upon cos alpha cos beta plus tan alpha tan beta is equals to tan gamma, and you have to prove that cos 2 gamma is less than equals to 0। tan gamma is given और आपको कहा गया है कि प्रूव करना है आपको that cos 2 gamma is less than equals to 0। जहां से स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन, tan gamma is given और cos 2 gamma के बारे में आपसे पूछा गया है, तो एक बात तो ये हो गई जो आपको सोचना होगा, that cos 2 gamma is nothing but tan gamma given है, तो cos 2 थीटा के तो कई सारे फॉर्मूले आपके पास में, लेकिन आप प्रेफर करेंगे कौन सा फॉर्मूला, जो tan थीटा के ऊपर बेस्ड है। सो यू आर गोइंग टू टेक द फॉर्मूला एज cos 2 gamma is 1 minus tan square gamma upon 1 plus tan square gamma। tan alpha tan beta can be written as sin alpha sin beta upon cos alpha cos beta। tan को sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan gamma can be written as, tan gamma को लिखा जा सकता है आफ्टर टेकिंग द LCM, tan थीटा को sin by cos में लिखने के बाद में 1 plus sin alpha sin beta upon cos alpha cos beta, राइट। बट एक और बात समझना, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब दैट इज द वैल्यू ऑफ tan गामा, ठीक। cos 2 गामा आपको प्रूव करना लेस देन इक्वल्स टू 0, सो यू हैव टेकन द फॉर्मूला ऑफ cos 2 गामा इन टर्म्स ऑफ tan गामा, लिख दिया आपने। tan गामा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगर हम ये tan गामा की वैल्यूज प्लेस करते हैं तो एक लेंदी सा एक्सप्रेशन आएगा, काफी बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं tan गामा की वैल्यू प्लेस करता हूं तो थोड़ा सा टीडियस सा एक्सप्रेशन बनेगा। आई एम गोइंग टू कीप tan गामा इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ, तो लिख तो दूंगा मैं, स्क्वायरिंग करूंगा, एलसीएम लूंगा तो बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि cos 2 गामा की वैल्यू पूछी या लेस देन इक्वल टू 0 पूछा है, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर गामा, 1 प्लस tan स्क्वायर गामा क्या होता है, sec स्क्वायर गामा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा, एक छोटी सी बात बताइएगा मुझे कि sec थीटा की रेंज क्या है। We have discussed the curves of all the 6 trigonometric functions.
If I ask you the range of sec theta only, मेरे ख्याल से सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको बहुत क्लियर कट समझाया गया. सेक थीटा, रेंज ऑफ सेक थीटा इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन, राइट. बट व्हेन आई से सेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक स्क्वायर थीटा? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, रेंज ऑफ सेक थीटा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, दैट्स फाइन. इफ आई आस्क यू स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इफ आई आस्क यू द रेंज, एक बात तो कंफर्म है कि स्क्वायर करने पे इट्स नॉट गोइंग टू टेक एनी नेगेटिव वैल्यू. अगर आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो आने का प्रश्न नहीं उठता. इट इज गोइंग टू बी वन टू इन्फिनिटी. द पॉइंट इज, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, ये वन प्लस टेन स्क्वायर गामा विच इज नथिंग बट द सेक स्क्वायर गामा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वन. तो एक बात तो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव. समझ रहे हो क्या? डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, उसका कोई लोड नहीं. हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. हमें पूछा गया cos टू गामा इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, cos टू गामा नेगेटिव है. हमने कहा भैया डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, पॉजिटिव है वो तो इसका मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आने वाला न्यूमरेटर से. तो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द न्यूमरेटर. अब मैं केवल न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा. भाई कैलकुलेशन आसान बना देगा ना. अदरवाइज आप न्यूमरेटर में भी रख रहे हो, डिनोमिनेटर में भी रख रहे हो, करे जा रहे हो सॉल्व, क्या जरूरत है, राइट. तो न्यूमरेटर इज वन माइनस टेन स्क्वायर गामा, दैट इज वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर गामा. अब मैंने टेन गामा की वैल्यू प्लेस करी यहां पर. वन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर ऑफ दैट. ठीक, जस्ट सॉल्विंग द न्यूमरेटर. वन माइनस टेन स्क्वायर गामा को सॉल्व कर रहा हूं मैं. cos square alpha, taken the LCM, cos square alpha cos square beta minus of 1 plus sin alpha sin beta whole square of that upon cos square alpha cos square beta, right. What next? अभी क्या किया जाए? न्यूमरेटर में इसको जब आपने चेक किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इसमें आप अप्लाई कर सकते हो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. हियर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज देयर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जब लिखूंगा तो साइन के टर्म्स में आएगा. कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को भी उठा के मैंने साइन के टर्म में लिखा. तो बना, सॉल्व किया आपने इसको. इट इज बिकमिंग न्यूमरेटर जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, व्हाट इट इज बिकमिंग व्हेन आई सॉल्व दिस. ठीक, ये मैंने न्यूमरेटर पूरा साइन के टर्म्स में ले लिया. साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, ये वन भी कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, बढ़िया. दिस इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा. इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, इट इज बिकमिंग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा. तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर ऑफ दैट
अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये सारी टर्म्स स्क्वायर में, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट विल रिमेन पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव, बट विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, सो इट इज गोइंग टू रिमेन। भाई डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो तो हमने सॉल्व किया ही नहीं है, दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हमने केवल न्यूमरेटर सॉल्व किया और न्यूमरेटर को बता दिया कि ओके इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, इट्स ऑलवेज लेस देन 0। और ये इक्वल टू 0 भी तब बनेगा जब ये दोनों दोनों 0 हो जाते हैं, तब वो जाके साइन अल्फा साइन बीटा जब दोनों 0 हो जाएंगे तब वो जाके 0 बनेगा, ठीक है। इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि हमने इसको सिंप्लीफाई करा कैसे कि डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं किया, अननेसेसरी उसमें वैल्यू पुट करते सॉल्व करते, कोई पॉइंट नहीं था उसमें, है ना, केवल न्यूमरेटर सॉल्व किया। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा था, उसको भी साइन के टर्म्स में ले आया, न्यूमरेटर पूरा साइन के टर्म्स में ले आया, माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर एंड इट इज नेगेटिव ऑलवेज। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव दैट, that's the previous year JEE question also, tan alpha plus 2 tan 2 alpha plus 4 tan 4 alpha plus 8 cos 8 alpha is equals to cot alpha, that you have to prove। लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करें और राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करें, राइट हैंड साइड में ओनली वन एक्सप्रेशन इज देयर विच इज कॉट अल्फा देयर। हमने क्या किया, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। या तो ऐसा कहिए कि आपने कॉट अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, सो इट बिकम्स tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, या 1/1, या तो कॉट अल्फा आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, या यू स्टार्टेड शिफ्टिंग टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कि tan अल्फा को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। देखिएगा, सो बेटर इफ आई से कि कॉट अल्फा हैव शिफ्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉट अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो कॉट अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में इट वुड बी 0। अभी मैंने क्या किया, आई हैव सॉल्व्ड द टर्म tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, भाई नाउ इट बिकम्स लाइक दिस, चलो लिख देते हैं, ठीक। अभी I solved this term tan अल्फा माइनस cot अल्फा, ठीक, cot अल्फा को 1/tan अल्फा किया, just solving these terms, right, cot अल्फा माइनस tan अल्फा या tan अल्फा माइनस cot अल्फा मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, इट इज बिकमिंग tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, ठीक। बस सर अब क्या करोगे, देखो रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें, या tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, tan 2 अल्फा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 अल्फा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। बोले सर अभी देख के बताते हैं, नहीं देख के नहीं बताना, अभी खत्म होने वाली क्लास, अभी रटे हुए होना चाहिए। तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, फाइन। ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, मैंने क्या किया यहाँ पर कलाकारी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक। आई कैन राइट इट 2 अपॉन विथ माइनस साइन आई एम जस्ट सॉल्विंग द टर्म tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। अभी केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं बता दूं मैं आपको, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं। ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बोले क्यों सोचा सर, बिकॉज मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है tan 2 है 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, टर्म अवेलेबल है, tan है इधर, ये tan स्क्वायर है माइनस 1 है, माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, क्या बन रहा है ये कुल मिला के, इट इज बिकमिंग माइनस ऑफ 2 टाइम्स। दोस्तों ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, कौन सा फॉर्मूला, tan 2 अल्फा, ठीक है, और 1 अपॉन tan 2 अल्फा cot 2 अल्फा। ये बात समझ में आई क्या आपको,
लेकिन अभी तो मैंने एक टर्म सॉल्व करी है, जस्ट सॉल्व द टर्म tan अल्फा माइनस cot अल्फा। फिर से देखिए क्या किया मैंने, आई हैव शिफ्टेड cot अल्फा इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आई सॉल्व tan अल्फा माइनस cot अल्फा। cot को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, टेकन द एलसीएम और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और अरेंज किया इन टर्म्स ऑफ tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो 2 tan a upon 1 minus tan square that will be tan 2a, but it is there in the denominator, तो 1 upon tan theta will become cot theta, तो cot 2 अल्फा बन गया। बोले सर उसका क्या करोगे, देखो दिस इज द रिजल्ट, tan अल्फा माइनस cot अल्फा का रिजल्ट है माइनस 2 cot 2 अल्फा, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। अब देखो नेक्स्ट टर्म इज 2 tan 2 अल्फा एंड यू विल बी गेटिंग द आइडिया। अभी क्या किया हमने, 2 tan 2 अल्फा माइनस, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया था दैट इज माइनस ऑफ 2 cot 2 अल्फा। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चन देखे जहां पे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया, जो नई टर्म आई उसको नेक्स्ट में मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई किया, याद है ना? एग्जैक्टली इन द सेम मैनर फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व किया, जो रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट टर्म के साथ में सॉल्व किया। 2 tan 2 अल्फा माइनस 2 cot 2 अल्फा, बोले ये कहां से आया, इधर से आया, एंड दिस इज द टर्म एज इट इज। एंड अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर cot 2 अल्फा को लिख दिया, चलो समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। ट्वाइस ऑफ tan 2 अल्फा माइनस 2 अपॉन tan 2 अल्फा, अगेन टेकन द एलसीएम देयर, tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन tan 2 अल्फा, राइट, इट विल बी माइनस साइन कॉमन लिया 2 अपॉन tan 2 अल्फा इज देयर, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, चलो लिखते हैं आपके सामने लिखते हैं, tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। बोले सर ये माइनस साइन क्यों, समझ रहे हो ना, tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2, सो दैट ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 4 अपॉन tan 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan 4a का जो फॉर्मूला होगा वो 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। दोस्तों इट विल बिकम 1 माइनस, ये हो जाएगा tan 4 अल्फा विच इज माइनस ऑफ 4 cot 4 अल्फा। एंड आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग द पॉइंट। अभी ये जो माइनस 4 cot 4 अल्फा आया है, यू आर गोइंग टू सॉल्व विथ, इसको उसके बाद वाली टर्म से सॉल्व करेंगे। 4 tan 4 अल्फा माइनस 4 cot 4 अल्फा, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है, यू कैन डायरेक्टली राइट माइनस ऑफ 8 cot 8 अल्फा एंड माइनस ऑफ 8 cot 8 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा 0, राइट। सो ट्रिगो है ना, तो हर क्वेश्चन में नई सी अप्रोच तो मिलती है, तो तय बात है, तो परेशान नहीं होने का, सीखने का। Now the question is sin raised to power 4 theta upon a plus cos raised to power 4 theta upon b equals to 1 upon a plus b, and you have to prove these two results. So sin raised to power 4 theta upon a plus cos raised to power 4 theta upon b equals to 1 upon a plus b. So sin raised to power 4 theta upon a plus cos raised to power 4 theta, किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए तो sin थीटा है cos थीटा के टर्म्स में, तो cos थीटा को हम sin थीटा के टर्म्स में लेके आते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट बाय b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b लिख सकते हैं। कुछ बड़ा काम नहीं, या तो साइन में लेके आओ या cos के टर्म्स में लेके आओ, ठीक। तो cos को हमने sin के टर्म्स में चेंज किया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर ऑफ दैट, एंड टेक द एलसीएम आल्सो, एलसीएम भी लिया है यहाँ पर, b टाइम्स sin टू द पावर 4 थीटा प्लस, और स्क्वायर भी ओपन किया, माइनस ऑफ 2a sin स्क्वायर थीटा अपॉन ab
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व कर रहे हैं पूरा पूरा, तो साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व किया एंड टेकन द एलसीएम, एलसीएम लिया, ये ए प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी इंटू ए प्लस बी साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस ए इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इनफैक्ट इसको ऐसा लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा के साथ में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ, तो इट इज बिकमिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, दिक्कत तो नहीं, माइनस 2a इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इट इज प्लस a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, और ए बी को राइट से लेफ्ट में लेकर ले जा सकते हैं। समझ में आया क्या? और ए बी को फाइनली हम सॉल्व कर रहे हैं उसको कुल मिला के, इट इज बिकमिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस 2a इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल होता है, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस 2a इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अरे सर अब क्या करें, तो सब कर लिया, जितना आपने कहा था सॉल्व कर लिया, अब क्या करें आगे? थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर आप करते हैं और बात तो बन जाती है, इट इज डायरेक्टली बिकमिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए जरा, ये बोले सर कैसे सोचा, सोचने वाली कोई बात नहीं, इट्स डायरेक्ट ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए in whole square of that, just observe, yes it is becoming that a square plus b square minus 2ab, yes you are getting the result, result मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 0, यू कैन राइट a plus b into sin square theta is equals to a, so yes you are getting sin square theta and sin square theta is coming as a upon a plus b, राइट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा देयर। और दोस्तों अगर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन ए प्लस बी, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा। जो प्रूव करना है आपको, साइन रेज़ टू पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस रेज़ टू पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी होल क्यूब, क्यों नहीं कर सकते? हो गया। इफ यू सॉल्व द एलएचएस, कॉस स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए प्लस बी, तो उसकी पावर 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बी अपॉन ए प्लस बी रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 बाय ए क्यूब प्लस, सॉरी ये हो जाएगा ए अपॉन साइन, it is b upon a plus b raised to power 4 into 1 by b cube, ठीक है, ये a क्यूब, ये a raised to power 4, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स द रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है इसी को जनरल टर्म में लिख दिया, और क्या दिक्कत है? साइन रेज़ टू पावर 4n थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो पावर 4n में बोले सर क्या करेंगे? अरे भैया क्या टेंशन ले रहे हो यार, पावर 2n हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अवेलेबल है तो कॉस टू द पावर 4n को लिख सकते हो आप। अरे जैसे ये किया एग्जैक्टली इन द सेम मैनर्स ये भी कर लीजिए, बना लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट।